We understood, right, the short run average cost function in the previous some lectures, in which, right, we understood the shapes of the cost curves, average cost curves. First, your average fixed cost, it will be downward sloping. It will be downward sloping. It means, try to understand, average fixed cost curve is a downward sloping. It indicates that as output will increase, the AFC will decrease. AFC is equal to average fixed cost is equal to total fixed cost divided by quantity. Therefore, I can also say total fixed cost is equal to average fixed cost multiplied by quantity by reshuffling the formula. Then average variable cost is downward sloping initially, then becomes minimum and then starts increasing. So it is U shaped or Nike shaped. ठीक है. Then कोई लोग J shaped भी बोलते हैं. J, वो J जैसे दिखती है. J shape भी बोलते हैं. ठीक है. आगे. So initially it decreases as output increases. Average variable cost will decrease. कल मैंने reason बोला. Because when you produce more and more and more, you will require more labor, you will require more raw materials. That is a variable right now. And therefore we will ask for more discount, right? Initially the efficiency is really good of both raw materials as well as labor. So with less input, they can produce more, and on an average cost decrease hoti. On an average cost decrease hoti. However, latter stages mein, when you want to produce more, the average variable cost increases because the competition among the producers. Competition among the producers. What do you mean by that? Competition among the producers. Everyone wants to buy raw material, everyone wants to have skilled labor, and therefore others are ready to pay more for the same raw material and for same labor. And therefore, because of this cutthroat competition, the right price of the raw material and the wages increases. At the same time, right, once a producer is purchase the raw material or the labor from the local market, he will move to the right distance market, and in that case the cost of transportation, cost of storage, right, etc. increases, and therefore average variable cost also increases. So initially वो decrease होगी, will become lowest, and then it will increase. An average cost curve, average cost curve initially downward slope रहेगा, will become right, it will become minimum, and then it will increase. और कल हमने इसका रीजन समझा, why average cost curve is U-shaped curve. Reason, initially, right, both average fixed cost and average variable costs are decreasing, and therefore, right, your average cost decreases very steeply. In the latter stages, average fixed cost continues to decrease, average variable cost increases, but rate of decrease in AFC is more than rate of increase in AVC, and therefore, right, average cost नीचे आएगी, but at a diminishing rate. In the latter stages, if you produce more, average variable cost continues to increase, average fixed cost continues to decrease. However, increase in the average variable cost is more than decrease in average fixed cost, and therefore your average cost will increase. समझ में आया? ये जो फेज है, ये जो फेज है, राइट, इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने एक बॉल ऊपर फेंका है,
सो जिस रेट से वो ऊपर जा रहा है और बाद में ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे आता है, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन इज लार्जर. नीचे आने का स्पीड, राइट, जिस हम ऊपर फेंक रहे हैं वो नीचे खींच रहा है ग्रेविटेशन. सो द पावर ऑफ द ग्रेविटेशन इज मोर देन अस एंड देयरफॉर बॉल नीचे आएगा. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम सैटेलाइट ऊपर छोड़ते हैं, राइट, हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशन से ज्यादा पावर लगाते हैं सो दैट वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर को पियर्स करके ऊपर जाए. सो इन दैट केस ये वो वाली स्टेज है. समझ में आ रहा है? देन दिस इज सिंपल. So why average cost is U-shaped? Because of the behavior of, right, average fixed cost and average variable cost. Initially, both are decreases. Therefore, average cost sharply decreases. In the latter stages, AVC increases and AFC continues to decrease, but rate of decrease in AFC is more than rate of increase in AVC. Therefore, AC will continue to decrease, but at a diminishing rate. In the latter stages, right, AVC will continue to increase, AFC will continue to decrease, but rate of increase in AVC is more than rate of decrease in AFC, and then increasing rate will pull up the average cost. So average cost खुद के minimum से reach करेगी and then it will become, right, it will continue to increase. Now there comes a marginal cost जो हमने देखा, it is U-shaped, बराबर ना? So अब ध्यान देना, if I bring all the curves together, अब हमें relationship समझनी एक दूसरे के साथ. This is quantity produced output. This is costs in rupees. ध्यान देना, this is Nike shaped. This is average variable cost curve. This is which curve? Average variable cost curve. Average fixed cost curve continues to decrease. बराबर? Now, इन दोनों का vertical summation, average variable cost plus average fixed cost. This is average variable cost, suppose, at this output plus average fixed cost. तो obviously average cost किधर ऊपर रहेगी. Are you getting my point? So always remember average cost सबसे ऊपर रहेगी तीनों cost में. आगे, so average cost suppose कुछ ऐसे है, ठीक है, and this is the lowest point of average cost. This is AC, this is AVC, and this is AFC. This is the lowest point of average variable cost. So there are three average cost. Average fixed cost continues to decrease left to right, downward sloping है. Average cost curve and average variable cost are U-shaped और inverted bell shaped. Nike shape बोला तो भी चलेगा. AVC जरा Nike shaped है, average cost Nike shape नहीं होती, वो आप उसको बोल सकते हो कि वो U-shaped है. Marginal cost curve मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. This is marginal cost. This is the lowest point of the marginal cost. So try to understand. Marginal cost passes through minimum point, minima of
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट दोनों के मिनिमम से पास होती है. इट इंटरसेक्ट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. इट इंटरसेक्ट फ्रॉम द बिलो. समझ में आ रहा है? विच कर्व, राइट, passes through minima of AVC and average cost? It is marginal cost curve. Average cost का minimum का कोई सवाल ही नहीं, because it continues to decrease. हमेशा decrease ही होती जाएगी. Average fixed cost, average cost and average variable cost का minimum point हो सकता है जिसको intersect करेगी और marginal cost. ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. Which curve attains minimum first? Obviously marginal cost will achieve its minimum first and then starts increasing. Later on, average variable cost is the second जो उसका minimum achieve करेगी, and सबसे end में average cost will achieve its minimum. सबसे पहले lowest कौन achieve करती है? Marginal cost. उसके बाद average variable cost. उसके बाद average cost. ठीक है, ध्यान देना. अब क्या बोल रहा हूं? Everyone, the relation between average cost and marginal cost. What is the relation between average cost and marginal cost? ध्यान देना. As long as ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली पार्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला. As long as, यहां पे लिख लेना, relation between average cost and marginal cost, right? As long as average cost is decreasing, देखो जब तक एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, कहने से मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट नीचे है ना, इस आउटपुट तक देखो, ये वाले आउटपुट तक, ये जो भी आउटपुट होगा, ये वाले आउटपुट तक देखो. एज लॉन्ग एज एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, marginal cost is below, is less than, right, your average cost. So I will say marginal cost is less than average cost, that is marginal cost lies below, जो लेस रहेगी वो नीचे रहेगी, ठीक है, below average cost. When average cost reaches its minimum point, जब एवरेज कॉस्ट खुद के मिनिमम पर रहेगी, इट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. वहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट कर रही है. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दैट इज marginal cost will intersect average cost from below. ठीक है. देन when, अब ये वाला पोर्शन देखो, when average cost is increasing, when average cost is increasing, you can see, you can observe that, right, when average cost is increasing, marginal cost is above average cost. कोई भी सपोज इस पॉइंट पे देखो, अगर एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इतनी है, एवरेज कॉस्ट इतनी है, समझ में आ रहा है? सो व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, मार्जिनल कॉस्ट विल एक्सीड और विल बी मोर देन एवरेज कॉस्ट. एट एनी आउटपुट marginal cost will be more than average cost if average cost is increasing at that output. That is MC lies above
the AC. ठीक है? Then MC intersects minimum point of AC, and that output is called as optimum output or least cost output. Right here, the given plant is fully, optimally, that is optimally utilized. This point is VIMP. So which is the optimum output? Output produced with least cost per unit. Least cost per unit. Optimum output. Click लेना. Optimum output is output produced with lowest cost possible. Lowest cost possible. Because average cost in is both ना. Fixed cost plus variable cost का जब हम average लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Average cost मिलेगा. So average cost is the cost of production, final cost of production. Average cost बोल रहा हूं. Average cost कर्व सबसे important है. So average cost curve represent the cost of production per unit. So if you see, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. If you see, this is your average cost curve. This is the lowest point. Try to understand. You are producing. If your selling price is example, selling price जाने तो कोई जरूरत नहीं है. This is 10 rupees. This is 9 rupees. This is average cost. Average cost मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट. ऑन एन एवरेज एक यूनिट कितने में गिरा? This is suppose 7 rupees. This is 10. This is 11. This is 11. What do you mean by this? If you produce these many units, OQ1 units, if you produce OQ1 units, if you produce OQ1 units, एक यूनिट की कॉस्ट 11 रुपए होगी. प्रोडक्शन की कॉस्ट रहेगी 11. If you produce OQ2 units, ज्यादा प्रोड्यूस करो, your average cost will decrease. टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी ऑब्वियसली. ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, बट डिवाइडेड बाय मोर यूनिट्स ना. सो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगी. यू टेक डिसीजन ऑन एवरेज. एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो 10 पेपर्स दे रहा है. 10 पेपर्स में उसके मार्क्स एग्जाम्पल 800 है. 1000 मार्क्स में से 800 मार्क्स है आउट ऑफ 1000. दूसरा बच्चा है जो 5 पेपर्स ही दे रहा है, उसके 450 मार्क्स है आउट ऑफ 500. अगर आप टोटल पे जाओगे तो आप बोलोगे 800 मार्क्स आर बेटर देन 450 मार्क्स. टोटल पे जाओगे तो आपको लगेगा 450 मार्क्स से 800 मार्क्स कभी भी अच्छे है, बट डोंट गो ऑन टोटल. टोटल इज नॉट द करेक्ट वे. वी शुड टेक द एवरेज परसेंटेज. हम बोलते हैं 80% है और ये 90% है, या 90% है. So which is the better? 800 better or 450? टोटल से देखोगे तो 800 is better, but 800 is out of 1000. 450 is out of 500.
Therefore, we never take the decision on the basis of total. We take the decisions on the basis of average and marginal. We take the decision on the basis of average and marginal. And therefore, Alfred Marshall comes with the principle of marginalism. Marginalism principle, एडिशनल कितना खर्चा रहेगा, एडिशनल कितना रेवेन्यू रहेगा, हम वो देखेंगे. इसलिए याद रखना, we take the decisions on margin or average. So भले ही OQ output is more, OQ output is more. Example ध्यान देना, OQ1 output is 1000, OQ2 output is 1500 units. This output is 2000, OQ3 output. This is OQ4 output, which is example, suppose हम लेके चलते हैं 4500. This output is OQ5, which is suppose 7000. This is OQ6, suppose example 8000. If I ask you total cost, how to find out total cost? It is average cost multiplied by output. How to find out total variable cost? Average variable cost multiplied by output. How to find out total fixed cost? Average fixed cost multiplied by output. So देखते हैं, at output OQ1, output is 1000, output is 1000, output is 1000 multiply by average cost is 11. 1000 की एवरेज कॉस्ट चाहिए ना, 1000 की एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो ऊपर देखो 1000 से परपेंडिकुलर डालो, 1000 पे आएगा एवरेज कॉस्ट से 11. सो योर टोटल कॉस्ट इज 55000. OQ2 देखो 1500 यूनिट्स ऑन एन एवरेज कितने में बन रहा है, 10. दिस विल बी 1500. नहीं ये गलत लिखा मैंने कुछ, तो 55 नहीं आएगा, ये 11000 आएगा, सॉरी. देन OQ3, OQ3 कितनी यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स. 3000 की कॉस्ट ढूंढनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, 3000 के ऊपर देखो एवरेज कॉस्ट पे 9. सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 9, कितनी कॉस्ट है, 27. OQ4 देखो कितने यूनिट से, OQ4 लेवल पे कितने यूनिट्स, क्वांटिटी कितनी है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 7, एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 7. सो ले लो 4500 मल्टीप्लाई बाय 7, 31500. OQ5 देखो, OQ5 पे कितनी क्वांटिटी है, 7000, और 7000 का एवरेज कॉस्ट क्या है, 10. कॉस्ट इज 70. OQ6 8000 multiplied by 11, 88,000. So you can observe, as output is increasing, your total cost is increasing. It has to. Try to understand, your total cost is increasing. Obviously increase होगी. Don't go on total. तो आप बोलोगे यार 11,000 is better. सबसे कम cost है. अरे but output भी कम है ना, 1000 ही output है. If you have to increase the output, you have to incur more cost. There is no variable cost increase होगी आपकी. Don't go on total. Total will misguide you. Go on the average. देखो 1000 प्रोड्यूस करने के ऑन एन एवरेज 11 रुपीज कॉस्ट है. अगर आप आउटपुट इंक्रीज करोगे, उसका फायदा क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज करने का पता है, आपकी कॉस्ट कम होगी. सर कैसे कॉस्ट कम होगी, बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट खुद कम होती है. व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी,
because if you produce more, you can divide the cost on large units, therefore your average cost will initially decrease. So which is better, producing a unit at 11 is better or producing unit at 10 is better? Obviously 10, कम cost में बन रहा है. If your selling price is 20 per unit, यहाँ पे 9 rupees का प्रॉफिट होगा पर यूनिट, यहाँ पे 10 rupees का प्रॉफिट होगा पर यूनिट. विच प्रॉफिट इज बेटर, 9 और 10? 10 rupees प्रॉफिट. एक यूनिट की एवरेज रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस इज 20, कॉस्ट है 11, बनाने की कॉस्ट 11 है, सेल 20 में होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 9. अगर वही 10 rupees में बन रहा है 20, सो 10 वर्सेस 20, 10 rupees का प्रॉफिट रहेगा, 9 rupees कॉस्ट है. भले टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बट एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है. सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 11 पर यूनिट रहेगा. 7 rupees, यहाँ पे प्रॉफिट 13 रहेगा. 10 rupees, यहाँ पे प्रॉफिट 10 रहेगा. 11, यहाँ पे प्रॉफिट 9 रहेगा. विच इज द बेस्ट? What I want to tell you, which is the best possibility of the production? Producing a unit at 11, 10, 9, 7, 10, 11. This is the best. If you produce, try to understand, if you produce at cost 7, if you produce at a cost, देखो ना cost of production कम हो रही है ना आपकी, which is average cost कम हो रही है. Average cost कम हो रही है, it's always good. So always remember, among these outputs, इतने सारे आउटपुट है, उसमें से ये जो आउटपुट रहेगा, ये जो भी आउटपुट रहेगा, ये लोएस्ट कॉस्ट पे बन रहा होगा, इसकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट होगी. एंड इसको हम बोलते हैं, हम ये जो प्लांट है, शॉर्ट रन देख रहे हैं ना, ये जो भी प्लांट हमने इंस्टॉल करके रखा है, विच यू कैन नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन, इज ऑप्टिमली यूटिलाइज. अगर हम इस लेवल पे काम करते हैं, लोएस्ट पॉइंट, एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है, उस आउटपुट पे प्रोड्यूस करते हैं, ये वाले आउटपुट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट पॉइंट बिलोंग्स टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट. हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं. ऑप्टिमम मतलब मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या? मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे. एनी अदर पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठाओ, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा रहेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. समझ में आ रहा है? सो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, lowest point of short run average cost curve is optimum output, is optimum output. उसका output optimum रहेगा. Why optimum output? The output which is produced with least average cost. मतलब there is very less wastage. Your resources are optimally utilized. That is the best. Are you getting my point? So I want to tell you, right? OQ4 in this my example is optimum output. You may produce less than that, you may produce more than that. कितना प्रोड्यूस करोगे ये नहीं, बट ये समझ लेना, OQ4 in this example is least cost output, least average cost output. ठीक है, यही हुआ यहाँ पे लिखा है, marginal cost intersects minimum point of average cost and that output is called as optimum output, लीस्ट कॉस्ट आउटपुट. ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मतलब पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैं. हियर द गिवन प्लांट इज फुल्ली और ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड. इसका मतलब ध्यान देना, अप टू दिस पॉइंट आप OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब इस पॉइंट पे काम कर रहे हो, राइट. OQ2 पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इस पॉइंट पे काम कर रहे हो. OQ3 पे काम कर रहे हो, OQ3 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब यहाँ पे काम कर रहे हो. You are working on a downward sloping portion of the average cost curve. क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. You are working on the downward sloping portion of the average cost curve. अगर आप 4500 से कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, 4500 ऑप्टिमम आउटपुट से कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, you are working on the downward sloping portion of average cost curve. हम बोलते हैं plant is इस पीरियड में उस 4500 आउटपुट तक, जब तक आप 4500 आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करते, आई एम सेइंग
plant is underutilized. Plant fully utilized नहीं है, underutilized है. When you produce exactly 4500 output in this example, मतलब आप lowest point पे काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं optimally utilized और fully utilized. Plant is fully utilized. Plant is fully utilized. And if you are producing more than 4500 in this example, optimum output से कम produce करोगे, optimum से कम करोगे, OQ4 से suppose कम करते हो, OQ1, OQ2, OQ3, you are on a downward sloping portion of your average cost curve, short run average cost curve. मतलब if you produce more आपकी cost कम होगी, if you produce more आपकी average cost कम होगी, if you produce more average cost कम होगी. ऐसे क्यों हो रहा है? Because आप underutilized हो, you have incurred the fixed cost. आपने heavy fixed cost incur करके रखी है, but जब तक आप produce नहीं करोगे, जब तक आप उस plant को use नहीं करोगे, तब तक आपकी average cost कम नहीं होगी. Once you start using that plant, once you start producing more and more, once you start utilizing that capacity, your average cost is bound to decrease. Bound to decrease. समझ में आ रहा है? You will be happy to produce more. You will be happy. आप बोलोगे यार ज्यादा प्रोड्यूस करो, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, इट्स गुड. सो जब तक आप OQ4 आउटपुट पे नहीं आते, ऑप्टिमम आउटपुट पे नहीं आते, you should produce more and more and more. Reason, right? If you produce more, your average cost will decrease and indirectly profit margin will increase. Cost कम होगी तो profit increase होगा. Are you getting my point? If you produce exactly at optimum output, वो बेस्ट आउटपुट है, बेस्ट आउटपुट है, सबसे कम कॉस्ट वाला आउटपुट है, उससे कम कॉस्ट हो ही नहीं सकती. एक ही आउटपुट रहेगा, उससे कम कॉस्ट हो ही नहीं सकती प्रोडक्शन की. बट इफ यू प्रोड्यूस मोर ऑप्टिमम, OQ4 से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, यू आर ओवर यूटिलाइजिंग योर कैपेसिटी, यू आर ओवर यूटिलाइजिंग योर प्लांट. उसपे प्रेशर आ जाएगा. समझ में आ रहा है? एंड दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एवरेज कॉस्ट. ठीक है. एंड नाउ यू विल सरप्राइज, अरे पहले जब मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था तो मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो रही थी. एक जगह पे आपको सबसे कम एवरेज कॉस्ट मिलेगी एंड फिर भी आप प्रोड्यूस करोगे, टू योर सरप्राइज योर एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट एट ए कॉस्ट ऑफ हायर एवरेज कॉस्ट. यू विल बी सरप्राइज. ऐसे क्यों हो रहा है? उसका रीजन है you have employed more variable factors over given fixed factors. Are you getting my point? You are into like second stage of the production, law of diminishing returns or maybe negative returns. So यहाँ पे हम बोलते हैं plant is overutilized. Overutilized. मीन्स ये जो लोएस्ट पॉइंट रहता है ना, वहां पे हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन खत्म होता है. ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, इफ यू रिमेंबर इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फर्स्ट स्टेज एंड्स वेयर माय MP मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट फ्रॉम अबव एंड इक्वल होती है. और वहां पे मैंने बोला था जो मेरे फिक्स फैक्टर्स है उनके लिए जितने लेबर चाहिए उतने परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है. एट द एंड ऑफ द स्टेज 1 ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर जहां पे खत्म होता है, वहां पे मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, मेरा फिक्स प्लांट फुल्ली यूटिलाइज होता है, जितने लेबर चाहिए उतने उसमें काम कर रहे हैं, तो वहां पे मेरी कॉस्ट भी सबसे कम रहेगी. एंड दिस पॉइंट अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन से मैच करते हो, दिस इज दिस पॉइंट. जितने 4 लेबर लगाने थे उस मशीनरी पे, वो मेरा एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, जब आप 4 लेबर लगाओगे उस मशीनरी पे, जितना आउटपुट होगा ना, ये 4500 आउटपुट है. वो कितना आउटपुट है? 4500. सो जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल खत्म होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल खत्म होता है, मैंने वहां पे बोला था दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑन गिवन फिक्स फैक्टर. फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है.
और हमने बोला था फर्स्ट स्टेज में फिक्स फैक्टर्स आर मोर, वेरिएबल फैक्टर्स आर लेस, fixed factors are underutilized, and once you start them utilizing, your cost will decrease, production will increase and cost will decrease, efficiency will increase. जब efficiency increase होती है तो cost decrease होती है, जब efficiency increase होगी तो average cost क्या होगी, decrease होगी. So I am linking the two things, production function and cost function. मैंने बोला था in first stage, मैंने क्या बोला था ध्यान देना, मैंने बोला था in the first stage of the law of variable proportion, क्या बोला था ध्यान देना, in the first stage of law of variable proportion I have more of the fixed factors and I have very less of the variable factors. My fixed factors were underutilized. I have already incurred the huge fixed cost. Fixed factors की cost मैंने incur करके रखी है, huge fixed cost. If I don't produce, my fixed cost remains unutilized. If I have to decrease my cost, I must produce more, and उसके लिए मुझे वेरिएबल इनपुट चाहिए. प्रोडक्शन करना है तो मुझे ज्यादा लेबर चाहिए, मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए. Once I employ more and more labor on given fixed factors, efficiency increase होती है of the labor as well as fixed factor दोनों की. An increase in the efficiency decreases my cost. Efficiency and cost inversely proportional होते हैं. So in the first stage हमने बोला था MP marginal product increases, average product increases, efficiency increase हो रही है, output also increases, efficiency increase हो रही है, इसलिए average cost decrease होगी. At the end of the first stage of the law of variable proportion, जहां पे मैं AP average product and marginal product equal थे, at that level मैंने बोला था, right, there is a perfect combination of labor and capital. जितने लेबर चाहिए उतने कैपिटल है, मतलब दैट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन. योर फिक्स फैक्टर्स आर परफेक्टली यूटिलाइज्ड, फुल्ली यूटिलाइज्ड, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, परफेक्ट. मतलब वहां पे आपकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी, एवरेज कॉस्ट सबसे कम रहेगी, वो वाला पॉइंट है. एंड इन द सेकंड स्टेज एज यू कैन फाइंड योर आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड, यू इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर, आप लेबर लगाते हो, लेबर लगाते हो, लेबर लगाते हो. एंड इन द सेकंड स्टेज fixed factors are less and variable factors are more, and these large variable factors put pressure on the given fixed factors. Fixed factors overutilize होते हैं and efficiency कम हो जाती है. Of both variable factor as well as fixed factors की efficiency कम होती है. Efficiency कम होती है मतलब average cost increase होगी. They are opposite. लिख लेना कहाँ पे, efficiency and average cost, efficiency and cost are opposite. Efficiency and average cost are opposite. So in the second stage of the law of variable proportion, diminishing returns to law of variable proportion, decreasing returns to law of variable proportion. हमने बोला fixed factors were overutilized. जब fixed factors overutilized होंगे, the efficiency will decrease of both variable as well as fixed factors, and decrease in the efficiency increases average cost. So अगर कोई मुझे इस डायग्राम में बोलता है so प्रोडक्शन फंक्शन फर्स्ट लॉ कहां पे खत्म हुआ, फर्स्ट स्टेज कहां पे खत्म हुई, तो मैं उसको बोलूंगा यहां पे द लोएस्ट पॉइंट. तब हमने बोला था कि फर्स्ट स्टेज के एंड में, फर्स्ट स्टेज के एंड में परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब उस स्टेज के एंड में लोएस्ट कॉस्ट होगी आपकी. टोटल कॉस्ट नहीं बोल रहा हूं, एवरेज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है. एवरेज कॉस्ट लोएस्ट होगी बिकॉज वी टेक द डिसीजन एट एवरेज. एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी द लोएस्ट. सो उस स्टेज के पहले when you are producing more and more and more, you are using the given capacity, you are employing more labor using the given capacity. आप प्लांट को ठीक से यूटिलाइज कर रहे थे, राइट, एंड इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी. मतलब उसके पहले कभी भी, स्टेज 1 एंड होने के पहले कभी भी मैं बोलूंगा यू आर नॉट यूटिलाइज्ड. अगर आप स्टेज 1 में किधर रुकते हो तो मैं बोलूंगा आपने आपके फिक्स फैक्टर्स अंडर यूटिलाइज किए. तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, फिक्स फैक्टर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड, प्लांट और फिक्स फैक्टर इज अंडर यूटिलाइज्ड. फर्स्ट स्टेज के एंड में मैंने बोला ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, मतलब आप फिक्स फैक्टर्स
ऑप्टिमली 100% यूटिलाइज कर रहे हो, वही यहाँ पे लिखा है प्लांट इज फुल्ली ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमली यूटिलाइज। एंड इन द सेकंड स्टेज जब हम ज्यादा लेबर लगाते हैं ऑन गिवन फिक्स फैक्टर्स, वी आर डूइंग इन द शॉर्ट रन ओनली, ठीक है, हम बोलते थे कि फिक्स फैक्टर्स वर गेटिंग ओवर यूटिलाइज, इफिशिएंसी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर योर एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है प्लांट इज ओवर यूटिलाइज्ड एंड एवरी प्रोड्यूसर विल ट्राई टू बी ऑन ऑप्टिमम आउटपुट, मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, कहाँ पे काम करना पसंद करेगा, ऑप्टिमम आउटपुट, बट एक्चुअली वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, आई कैनॉट गारंटी, आई कैनॉट गारंटी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखते हो योर सेलिंग प्राइस इज 20, ₹20, एवरेज रेवेन्यू इज ₹20 पर यूनिट, यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट रहेगा 9, मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, योर प्रॉफिट इज 9000, टोटल प्रॉफिट इज 9000, ठीक है, उतना मैथ सबको आता है। 20 minus 10, cost is 10 rupees profit multiplied by 1500 units, profit is 15000, always better than OQ1, always OQ2 is better than OQ1, then cost के हिसाब से भी प्रॉफिट के हिसाब से भी। थर्ड लेवल पे देखते हैं, 20 is your selling price, 20 is your selling price, 9 is the cost, 11 is the profit multiplied by 3000, 27। OQ4 देखते हैं, 20 is the selling price, 7 rupees is cost of production of a unit, 13 is a profit multiplied by 4500, बोलो कितना, 58500। selling price is 20, cost is 10, profit is 10 multiplied by 7000, oh 70,000 profit, 9 rupees profit multiplied by 8, oh कितना, 70,000 प्रॉफिट। अब देखो कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से विच आउटपुट इज बेटर, मुझे बोलना है कॉस्ट के हिसाब से, एवरेज कॉस्ट के हिसाब से, व्हाट यू थिंक विच आउटपुट इज द बेस्ट, OQ1, OQ2, OQ3, OQ4, OQ5, OQ6, टाइप द आंसर, कॉस्ट के हिसाब से विच आउटपुट इज द बेटर, चलो जल्दी टाइप करो, अकॉर्डिंग टू एवरेज कॉस्ट विच आउटपुट इज द बेटर। अरे इतना क्यों टाइम लगा रहे, जल्दी करो, सो गए क्या सब? अरे मैं कॉस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ, कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट में इंडिया पाकिस्तान है। विच आउटपुट इज बेटर, जल्दी टाइप करो, कॉस्ट के हिसाब से विच आउटपुट इज बेटर, जल्दी। OQ4, perfect, OQ4 output is the best as per cost. Minimum cost does not mean maximum profit, may not need to right lead to maximum profit। अब मुझे बोलो प्रॉफिट के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, प्रॉफिट के हिसाब से OQ1 to OQ6 which is best as per profit, प्रॉफिट के हिसाब से आपको क्या लगता है? कॉमन सेंस शुड प्रिवेल, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, सॉरी एज पर प्रॉफिट OQ6, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, ये आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं खाली इतना बोल सकता हूं कि दिस इज लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, यहां इस आउटपुट पे मेरी कॉस्ट सबसे कम होगी, एवरेज कॉस्ट सबसे कम होगी, बट इस आउटपुट पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, आई डोंट नो, मैं बोल नहीं सकता। ये मत समझना कि कॉस्ट कम, एवरेज कॉस्ट कम मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम, दिमाग से निकाल दो, बिकॉज आई मस्ट ऑल्सो कंसिडर द टोटल क्वांटिटी। सो इसलिए हमने देखा था, ध्यान देना, हमने वहां पे क्या बोला था प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने बोला था
The producer will not stop at the end of the stage 1. ये stage 1 का end है, यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो आगे जा रहा है, because he knows profit will be maximum. Profit can be increased because output increase होगा. Are you getting my point? Output पे भी देखा जाएगा ना चीजें, इसलिए producer may not stop at OQ4 or optimum output. So try to understand. There is a difference between the least cost output and maximum profit output. In this example, OQ4 is least cost output and OQ6 is maximum profit output. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. OQ4 is least cost per unit output, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम आउटपुट. ऑप्टिमम आउटपुट where MC is equal to AC. इसको VIMP लिख के लेना. VIMP का 100 डिग्री, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. So OQ4 in this example, OQ4 is optimum output. ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन क्या है? ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन क्या है? MC should be equal to AC because MC cuts AC at its lowest point. लिख लेना कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट. फ्रंट पेज में लिखना, नोटबुक के पहले पेज में लिखना, पूरा इकोनॉमिक्स उस पर डिपेंड है. फ्रंट पेज में लिख लेना कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट. कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट. MC should be output at which NC is equal to AC. जहां पे कट करता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आउटपुट ढूंढो. परपेंडिकुलर जहां पे रुकेगा एक्स एक्सिस पे वो आउटपुट होगा. एंड मैक्स यहां पे OQ6. इन दिस एग्जांपल दिस इज मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट. मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट इसको बोला था इक्विलिब्रियम आउटपुट. आई एम नॉट श्योर, मैं अभी तक ये नहीं बोला हूं कि ये 72,000 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मुझे, बट ये तो पता चला कि OQ4 इज नॉट ए मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट. वियर अभी तक मैंने बात नहीं की इस पे, बट मैं कंडीशन लिख देता हूं. कोई फाउंडेशन वाले बच्चे, एनुअल बैच वाले, इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे ढूंढते हैं? बोलो क्या कंडीशन है, जल्दी टाइप करो. देयर आर सम स्टूडेंट, जल्दी बोलो. या ISC के बच्चे वो बोल सकते हैं, CBSE वाले. इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पे रहेगा? ऑप्टिमम आउटपुट MC इज इक्वल टू AC. ऑप्टिमम आउटपुट जल्दी टाइप करो. आई एक्सपेक्ट सम आंसर्स, एटलीस्ट एक दो लोग तो मुझे आंसर देंगे. चलो जल्दी. ओके किशोर, गुड. और कोई? परफेक्ट किशोर दे रहा. आई विल टेल यू, ऑब्वियसली मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया है, बट जो एनुअल बैच वाले वो बोल सकते हैं. कोई लोग कर रहे हैं एनुअल बैच के, 4-5 बच्चे अटेंड कर रहे हैं. एक ही ये मुझे एक एक को, हाँ परफेक्ट. हाँ नहीं, किशोर किशोर किशोर, हाँ ठीक है, उल्टा लिखा है तूने, ठीक है, परफेक्ट, गुड. हाँ अब भी बराबर बोल रहा है. सो लिख लेना वियर MR इज इक्वल टू MC या MC इज इक्वल टू MR, ऐसे लिखो. एक ही कंडीशन थी क्या? नहीं, एक ही कंडीशन थी, एक और कंडीशन थी, एक और कंडीशन थी. कोई मुझे बोलेगा ये मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, ये मैं मार्केट में सिखाऊंगा, बट अभी लिख के दे रहा हूं इसलिए. एक ही MC इज इक्वल टू MR 100% करेक्ट, बट उसके साथ एक छोटी कंडीशन थी. हम इसको यहां पे नहीं रुकते थे, हम एक सेंटेंस यूज करते थे. परफेक्ट, समझ ने परफेक्ट बोला है. MC शुड कट
MR from below. तो लिख लेना everyone on the front page. दो चीजें लिखनी है, दो चीजें लिखनी है, ठीक है? परफेक्ट है, ध्रुमन परफेक्ट है, ध्यान देना, लिख लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी पॉइंट है। ऑप्टिमम आउटपुट इज, ऑप्टिमम आउटपुट, ऑब्वियसली हम आज कॉस्ट में ऑप्टिमम आउटपुट सीखते हैं और मार्केटिंग में हम इक्विलिब्रियम आउटपुट सीखते हैं, वो मैं समझाऊंगा जिनको नहीं पता, बट कोई बच्चे अटेंड करे, मैं चेक करा था, उनको याद है क्या? ऑप्टिमम आउटपुट इज आउटपुट वेयर MC is equal to AC. That is, MC cuts, obviously नीचे से कट करेगा, MC cuts AC from below. And what do you mean by optimum output? The least cost output. पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम रहेगी। एंड दूसरा, इक्विलिब्रियम आउटपुट is output where MC is equal to margin, MC marginal cost is equal to marginal revenue. Additional cost should be equal to additional revenue. मतलब उस यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, एडिशनल यूनिट पे ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, और एंड दैट इज नहीं, एंड लिखो, एंड MC should cut MR from below. ये फ्रंट पेज पे आपके दो कंडीशन होनी चाहिए, ऑप्टिमम आउटपुट, लीस्ट कॉस्ट आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट आउटपुट। दोनों में अलग है। लाइक जैसे लड़के लड़कियां ढूंढते हैं गर्लफ्रेंड, जो टैलेंट विद ब्यूटी दोनों नहीं होते, ठीक है? टैलेंट भी चाहिए और ब्यूटी भी चाहिए, नहीं मिलेंगे। वही मैं बोल रहा हूं, एक टैलेंट एक ब्यूटी है, दोनों नहीं मिलेंगे। सिमिलरली ऑप्टिमम आउटपुट की तलाश में जाओगे तो इक्विलिब्रियम आउटपुट से हाथ धो बैठोगे, अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट के तलाश में जाओगे तो ऑप्टिमम आउटपुट से हाथ धो बैठोगे, दोनों साथ में मिलेंगे। ऐसे होती भी लड़कियां, बट वो खाली परफेक्ट कंपटीशन में होता है। सो ऐसे समझा रहा हूं तो क्लिक होगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। आपको ऐसी लड़की चाहिए जो टैलेंटेड भी और ब्यूटीफुल भी है। अब ये दो है और जनरली वो होता नहीं। हाँ, हर एक को लगता है अपनी गर्लफ्रेंड मतलब दोनों है, ठीक है? बट मैं थर्ड पार्टी के अनबायस्ड व्यू बोल रहा हूं, अनबायस्ड व्यू, ठीक है? सो इस केस में ये दोनों मिलना मुश्किल है। वैसे ही अगर आप ब्यूटी के पीछे भागोगे तो मे भी टैलेंट मिस करोगे, अगर टैलेंट के पीछे भागोगे तो मे भी ब्यूटी मिस करोगे, बट दोनों भी हो सकते हैं। वो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अचीव्स बोथ, वो ऑप्टिमम आउटपुट भी अचीव करती है, एक ही लेवल पे दोनों मिलता है उनको। ऑप्टिमम आउटपुट भी उनका इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट ही उनका ऑप्टिमम आउटपुट होता है। लड़कियां मुझे गालियां मत देना, मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट? सो ये समझ लेना कि लोएस्ट कॉस्ट डज नॉट मीन हाईएस्ट प्रॉफिट। ये समझ लेना, लोएस्ट कॉस्ट डज नॉट मीन हाईएस्ट प्रॉफिट, ठीक है? लोएस्ट कॉस्ट आउटपुट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। आप मुझे बोलो, एज ए इफ यूर प्रोड्यूसर, आप ऑप्टिमम आउटपुट की तलाश में घूमोगे या इक्विलिब्रियम आउटपुट के तलाश में घूमोगे? व्हाट डू यू थिंक? यू हैव टू टेल मी। लॉजिक यूज करो आपका, आप कौन सा आउटपुट, इफ यू आर सेलर, आप क्या कॉस्ट कम करना सोचोगे या प्रॉफिट मैक्सिमम करना सोचोगे? व्हाट डू थिंक? ये मत बोलना सर दोनों, दोनों अचीव पर खाली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होगा, विच इज अनरियलिस्टिक, विच इज अनरियलिस्टिक, ठीक है? वैसे तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी शादी होगी ही नहीं,
ऐसे समझो, फिर वो अनरियलिस्टिक है, किधर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली गुड, a seller or a producer will always try to achieve the maximum profit output. वो आउटपुट वो बोलता है कॉस्ट गई भाड़ में, प्रॉफिट सबसे ज्यादा है ना, जाने दो. राइट, इसलिए अल्टीमेट आउटपुट शुड बी इक्विलिब्रियम आउटपुट. एवरी प्रोड्यूसर्स, नीचे लिख लेना, एम ऑफ द प्रोड्यूसर, एम ऑफ प्रोड्यूसर टू attain, good, aim of the producer is to attain equilibrium output. और ये हम कहाँ पे सीखने वाले, मार्केट चैप्टर में. ऑब्वियसली अब 2-3 दिन में मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. मैं एक बेस रेडी कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम ऑन द कॉस्ट, बिकॉज ये समझा तो मार्केट समझ में आएगा. सो दिस, अरे बच्चे सीए होते हैं, उनको फिर भी नहीं पता था इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या, ऑप्टिमम आउटपुट क्या. माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ. जब मैं पास आउट हुआ और जब मैं सिखाना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला, मैं उनमें से एग्जांपल हूं कि दोनों अलग अलग होते हैं. सो इसलिए मैं मेरे अगर मुझे नहीं पता था तो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल को अच्छे से जानता हूं, ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड ऑप्टिमम आउटपुट, एंड द एम ऑफ द प्रोड्यूसर, लिख लेना, एम ऑफ द प्रोड्यूसर टू अचीव इक्विलिब्रियम आउटपुट. एंड में आपको प्रॉफिट चाहिए ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप हैप्पी रहोगे. तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपने EQ4 पे रुकना चाहिए, बट EQ4 पे प्रॉफिट 58,000 है, EQ6 पे प्रॉफिट 70,000 है. ऑब्वियसली हम 70,000 प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट है ना. सो एम इज टू अचीव इक्विलिब्रियम आउटपुट. और इधर ऊपर लिखना, equilibrium output is also called as maximum profit output or minimum loss output. कल मैंने एक चीज लिख के दी थी, between profit and loss you will choose profit. एक एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था देखो कल. between profit and loss you will choose profit. between the profits you will choose, ये सब प्रॉफिट वाले सिचुएशंस है, you will choose maximum profit. and suppose ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, अब ध्यान देना, यही एग्जांपल, सेलिंग प्राइस इज ₹5, सेलिंग प्राइस इज ₹5. ध्यान देना, अब सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट 11 है एक यूनिट की, ₹6 लॉस है, 6,000 का लॉस है. सेलिंग प्राइस इज 5, 10 इज cost, per unit profit is loss is 5, 7,500 का लॉस है. अच्छा, ₹9 कॉस्ट है, ₹5 सेलिंग प्राइस है, ₹4 लॉस है. 9 में बन रहा है यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 9, एवरेज कॉस्ट मतलब उसके बनाने की कॉस्ट 9, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में सेल हो रहा है, 5 में, 4 का लॉस है, 12,000 का लॉस. देन 7 कंपेयर विथ 5, ₹2 का लॉस, 9,000 का लॉस. यहाँ पे 10, ₹5 का लॉस, 35,000 का लॉस. आगे ₹6 का लॉस, 48. आज अब भी मुझे बोलो, जब ये प्रॉफिट की सिचुएशन थी तो आपने OQ6 बोला, अब ये सब जगह पे लॉस है. अब मुझे बोलो विच आउटपुट इज द बेस्ट, विच आउटपुट इज द बेस्ट. यू हैव 6 सिचुएशंस, बोलो which output is the best. OQ1 is the best. So वही मैं बोल रहा हूं, अब equilibrium output is no longer OQ6, equilibrium output is OQ1. Try to understand मैं क्या बोल रहा हूं, least loss. So equilibrium output मतलब या तो maximum profit, या अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे दोनों ऑप्शंस है, तो which will be equilibrium output, प्रॉफिट वाला. सब प्रॉफिट के ऑप्शंस है तो हाईएस्ट प्रॉफिट वाला, सब लॉसेस के ऑप्शंस है, होते हैं ना. देयर आर कंपनीज व्हिच आर कंटिन्यूअस इनटू लॉसेस, लाइक सुजलॉन, रेलवेज, बट स्टिल दे आर ऑपरेटिंग. रीजन क्यों बाद में समझाऊंगा, व्हेन वी स्टार्ट मार्केट, क्यों वो फिर भी काम करते हैं, राइट. अगर वो लॉसेस में तो उनके लिए बेस्ट क्या है,
least loss, minimum loss. इसलिए equilibrium output is a output where equilibrium output is a output where या तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या आपका लॉस मिनिमम होगा. उस आउटपुट को इक्विलिब्रियम आउटपुट बोला जाता है. एंड दैट इज एक्चुअल वेयर एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड कट द एमआर फ्रॉम बिलो. ये कंडीशन मार्केट चैप्टर की है. ठीक है. सो मैं रिलेशनशिप समझा रहा हूं आप लोगों को एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट की. तो पहले मैंने क्या समझाया? मार्जिनल कॉस्ट व्हेन राइट व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इनिशियल डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. सो व्हेन एसी खुद डिक्रीज हो रही है, एमसी भी डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है. ठीक है. बट एमसी विल बी लेस देन, एमसी विल बी लेस देन योर एसी. व्हेन एसी इज अ मिनिमम, व्हेन एसी इज अ मिनिमम, एमसी विल बी इक्वल टू एसी. दैट आउटपुट नीचे परपेंडिकुलर डालो क्वांटिटी पे, दैट आउटपुट इज ऑप्टिमम आउटपुट. व्हेन एसी इंक्रीजेस, एमसी विल लाई अबोव, उसके ऊपर जाएगी, नीचे से कट करके ऊपर जाएगी. एमसी विल बी मोर देन एसी. राइट. अप टू दिस आउटपुट, ये जो कोई भी आउटपुट है, ये सपोज ओक्यू आउटपुट है, अप टू ओक्यू आउटपुट, OQ output is the optimum output, not equilibrium output. OQ output is the optimum output, least cost output. Up to OQ output, you are underutilized. At OQ output, optimally utilized. Beyond OQ output, right? Beyond OQ output, what is it? Right? Overutilized. Okay? So whenever you are working on the downward sloping portion of average cost curve, you are underutilized. When you are working exactly at a lowest point of average cost curve, optimal utilized, production stage, law of production का first stage complete. And when you are working on increasing slope or right upper portion, increasing portion of the average cost, I will say you are overutilizing the plant. Clear है? इसमें किसको डाउट है प्लीज? At least underutilize, optimum utilize and overutilize समझा. And I am comparing with what? My production function. Now relation between लिख लेना. MC and AVC, average variable cost. देखो डायग्राम पे आ जाओ. When average variable cost is decreasing, when average variable cost is decreasing, ये वाला portion, MC is below average variable cost. When average variable cost is lowest, MC is equal to average variable cost intersect from the below. And when average variable cost is increasing, MC lies above AVC. जो relation MC और AC में है, वही relation MC and AVC में है. Because we know MC can be derived from both average cost and average variable cost. MC can be derived from AC as well as AVC. Yeah, MC can be derived from total cost or total variable cost. इसलिए उनका रिलेशन सेम है. दूसरी बात, वेरिएबल कॉस्ट ही एक्चुअली एवरेज कॉस्ट का स्लोप देती है, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है. बराबर ना? सो सेम लिख लेना, सेम एज, सही से लिखो, एज लॉन्ग एज AVC is decreasing, as long as AVC is decreasing, MC is less than AVC, that is lies below AVC. When AVC is minimum, MC is equal to AVC. That is MC cuts
AVC from below, मिनिमम पे कट करती है, MC cuts AVC from below, ठीक है. Then when AVC starts to increase, decrease होके मिनिमम होके इंक्रीज होगी कभी ना कभी, is increasing, MC is greater than AVC, that is अरे समझ में आ रहा है कि मैं जो लिख के दे रहा हूं, AVC that is MC curve lies above AVC, ठीक है. Are you getting my point? Then next oh, relation between average cost and average variable cost. रिलेशन नहीं है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देना एवरीवन. मैं आपको अच्छा ज्ञान देने वाला हूं आज. Whenever you enter into relationship in your life, your relation should be like what? ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना. This is AVC, average fixed cost. This is average cost. ध्यान देना everyone. What you observe, as output increases, average fixed cost decreases. Average fixed cost decreases and average variable cost initially decreases, become minimum and later on increases. बराबर. And we know average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost. इतना तो पता है. अब ध्यान देना, the distance between at any output, distance between average cost and average fixed cost is what? Up you have to help me out. Distance between average cost and average fixed cost is what? Distance मतलब माइनस, दो चीजों का डिस्टेंस पूछा है, मतलब दो चीजों का माइनस. एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट का डिस्टेंस पूछा है, मतलब एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? एवीसी. इट विल बी व्हाट? एवीसी. जिनको नहीं समझ में आ रहा है, डिस्टेंस मतलब माइनस. मैं बोलता हूं पुणे और नगर का कितना डिस्टेंस है, ठीक है. सो पुणे को 0 ले लो, नगर को 110 ले लो, तो 110 माइनस 0 110 किलोमीटर डिस्टेंस है. So what I want to tell you, distance मतलब difference. So जब मैं बोल रहा हूँ AC and AFC का distance क्या है, तो AC minus AFC क्या रहेगा? AC minus AFC is equal to AVC. And you can find the distance is increasing. The distance between AC and AFC increases because as output increases, average variable cost increase होती है. Are you getting my point? As distance between AC and AFC will increase because as output increases, right? AVC increase होती है. AVC क्या होती है? Increase. अब दूसरा डिस्टेंस देखो ग्रीन पेन से. डिस्टेंस बिटवीन एवरेज, एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस जो कम हो रहा है, देख बेसिकली. सो आई एम आस्किंग यू डिस्टेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट and average variable cost, AC minus AVC. Distance between average cost minus average variable cost is AFC. वो distance क्यों decrease हो रहा है?
क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज एज आउटपुट इंक्रीजेस एएफसी कंटिन्यूसली डिक्रीज. सो therefore as output increases, right, distance between average cost and average variable cost will decrease as right, as AFC decreases, and distance between AC and AFC will increase as AVC increases. So whenever you enter into relationship with anyone, your relationship should be like AC and AVC. आप लोगों में डिस्टेंस कम हो, आई मीन कोई डिफरेंसेस ना हो. अगर आप में एसी एंड एफसी का रिलेशन है तो ब्रेकअप डेफिनेटली है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए. इट मींस whenever you enter into relationship, try to be like AC and AVC. नजदीक आना चाहिए. दिस इज फंडा ऑफ योर लाइफ. समझ में आ रहा है? दूर नहीं जाना है, साथ में आना है. दैट इज द थिंग. AC एंड AFC AVC का डिस्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होता है. सो जैसे 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 टाइम स्पेंड होगा इन योर रिलेशनशिप, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज यू बोथ. सो मे बी कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, आपके दिमाग में आता है वो वाला नहीं. इट कैन बी योर फ्रेंडशिप और एनीथिंग. द डिस्टेंस शुड डिक्रीज, यू शुड कम क्लोज. समझ में आ रहा है? सो दैट इज योर रिलेशन. मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी रिलेशनशिप में आना है तो एसी एंड एवीसी जैसे रिलेशनशिप में आना है, ना कि एसी एंड एएफसी जैसे. बिकॉज एसी एंड एवीसी एज आउटपुट इंक्रीजेस एट टाइम स्पेंस, दे कम्स टुगेदर. टुगेदर नहीं बोलूंगा, their distance decreases. Obviously they will never intersect, each other, they will never touch each other. Reason? Because AFC never becomes zero. अगर AFC जीरो होती तो वो एक दूसरे को टच करते. बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस क्या है? AFC. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? AFC जब तक है तब तक उनमें डिफरेंस रहेगा, थोड़ा तो रहेगा. AFC never becomes zero, therefore average cost and average variable cost never intersect or touch each other. Their distance will be decreasing. Are you getting my point? तो चाहिए तो लिख लेना कहां पे, right? The relation should be like AC and AVC and not as AC and AFC. ठीक है? So ये क्लिक होना चाहिए. समझा? उसके पीछे लॉजिक भी मैंने समझाया कि क्यों AC एंड AVC का डिस्टेंस कम होता है. बिकॉज उनका डिस्टेंस है AFC जो खुद कम होता है. Will AC and AVC वो कितने भी क्लोज आए, will they touch each other or will they intersect each other? No, because AFC will never become zero. AFC कभी भी एक एक्सिस को टच नहीं करेगी. समझ में आ रहा है? अगर AFC एक्सिस को टच करेगी तो वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे. अगर AFC नीचे जाएगी निगेटिव में तो AVC ऊपर जाएगी और AC नीचे रहेगी. बट ऐसे कभी होता नहीं. Are you getting my point? And the distance between AC and AFC will continue to increase because the distance is AVC which increases. ठीक है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके सिवा मेरा कोई पॉइंट रहा है क्या? मुझे चेक करने दो. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अच्छा, एक और पॉइंट है, लिख लेना. द लास्ट पॉइंट फॉर द डिस्कशन बिफोर वी वाइंड अप द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फंक्शन. शॉर्ट रन समझ में आ गया तो लॉन्ग रन 2 मिनट जल्दी समझ में आता है. लिख लेना. Relationship between cost function and production function. Cost and production function.
average marginal product and marginal cost are inversely related. Kaise? If you remember, marginal product like this, this is MP, this is output, and this is labor. And MC curve. So देखो, when output increases, MP increases, becomes maximum and then decreases. यहाँ पे this is rupees, this is output. As output increases, MC decreases, becomes lowest and increases. Exactly उल्टा है. MP पहले increase होगी, maximum होगी और decrease होगी. MC पहले decrease होगी, minimum होगी और increase होगी. इन दोनों में relation opposite होता है. On similar basis, AP, yeah, average product and average variable cost are inversely related. Are inverse. आप average variable cost बोल रहे हो तो आप average cost भी बोल सकते हो, because जैसे average variable cost होती है कम होके minimum होके increase होगी, वैसे average cost भी होती है. ठीक है? आपका average product कैसे होता है? This is output, this is labor. बराबर? This is your AP. It will never become zero. Initially increases, becomes maximum, decreases. And how your AVC? एक्चुअली एमसी और एवीसी का स्लोप सेम रहता है. ठीक है? हाँ, ठीक है? So as output increases, AP increases, becomes maximum, then decreases. On the contrary, AVC decreases, becomes minimum and increases. They are opposite. MP and MC are opposite. AP, AVC are opposite. ठीक है? अब एक बार ध्यान देना. Everyone, average product is total product divided by output. नहीं होता है, बच्चे output बोलते हैं. Average product is production function is a relation between output and input. So output divided by input is inputs, number of inputs, number of variable inputs. Number of labor in simple word. ठीक है? Marginal product is change in the total product divided by change in the number of variable input. Change in number of variable input. Or total product of n labor minus total product of previous labor n minus 1. N is the number of labor. So production function is a physical, it is a technical relation between input and output. इसलिए output divided by input रहेगा. ठीक है? On the contrary, cost function is a
economical relation, it is mathematical relation between cost and the output, इसलिए cost upon output रहेगा, ठीक है. So AVC is equal to total variable cost divided by इनपुट नहीं, लेबर नहीं, आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, टोटल आउटपुट. एक्चुअली उधर जो न्यूमरेटर में ना, इधर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, बिकॉज इन द कॉस्ट, इन द प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर इज इंडिपेंडेंट, आउटपुट इज ए डिपेंडेंट, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है और कॉस्ट डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है. आगे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन change in number of total output, TP, change in the TP, or change in the total variable cost, change in number of output, total output or total product. Then or marginal cost of nth output, यहाँ पे n is a labor, n is a labor, यहाँ पे n is output, ठीक है. So marginal cost of nth output is total cost of nth output minus previous output, one minus one less. एंड इसमें एक और होता है, ठीक है, एक और होता है, यहां पे लिखेंगे टीपी, या टीपी की जरूरत नहीं, यहां पे लिखो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स, टीपी, या एग्जांपल ऐसे लिखो, बट ठीक है चलेगा, दैट इज टोटल कॉस्ट. TC total cost, or AFC plus AVC. So मैंने जानबूझ के फॉर्मूलेस दिए तो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है. ओके अब लेट मी चेक, मेरा कुछ गलती से मिस नहीं हुआ है ना. हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन कर रहे हैं, डन. मार्जिनल कॉस्ट मतलब उस यूनिट की कॉस्ट. अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 16th यूनिट ढूंढ रहा हूं, मतलब 16 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, एंड मैं अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ 16 यूनिट ढूंढ रहा हूं तो टोटल 16 यूनिट की ऑन एन एवरेज कितनी है. एमपी एमसी ऑफ 16 मतलब 16th यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है, 16th की कॉस्ट कितनी है, उसकी खुद की कॉस्ट कितनी है. एंड राइट, एसी 16 मतलब 16 यूनिट्स 1 2 3 4 ऐसे 16 यूनिट्स ऑन एन एवरेज कितने में बने. तो ये समझ में आना चाहिए. आगे एमपी मतलब वो पर्टिकुलर, एवरेज मतलब वहां तक, ठीक है. देखो यहां पे लिखा है, हाँ, marginal cost curve falls as output increases in the beginning
it starts rising after certain level of output. This happens because of influence of law of variable proportion. हम short run में cost function study करें तो production function भी short run का देखना चाहिए. The MC curve becomes minimum corresponding to the point of inflection in the total cost curve. मैंने वो पहले भी समझा है. This is my total cost curve. यहाँ पे वो स्लोप चेंज हो रहा है. दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये वाला ए से रहेगा. ये मिनिमम पॉइंट रहेगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द टीसी. दिस इज एमसी. सो वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, एमसी कर्व बिकम्स मिनिमम corresponding to the point of inflection on the total cost curve. The fact that marginal product rises first becomes maximum and then decreases, right? Rises first, reaches its maximum and then declines, ensures that marginal cost of the firm will first decrease, MC will decrease, become lower and then increase. In other words, MC is a U-shaped. MP is inverted U-shaped. MP is inverted U-shaped. MC is U-shaped. They are inversely related. Again, table. The fixed costs do not change with the increase in the output up to given level of output. Average fixed cost therefore comes down with every increase in the input. Variable cost increases, total variable cost increases, but not necessarily in the same ratio of the, right? In the same increase in the output. Ratio can be कम ज़्यादा हो सकता है, कोई problem नहीं. In above case, average variable cost comes down gradually till the fourth unit, and thereafter it starts to increasing. Marginal cost is additional cost divided by additional units produced. This cost comes down first, then starts increasing. The relation between AC and MC. The relation between MC and average cost is same as between any other marginal average quantities. Marginal average का जो relation होता है हमेशा वैसे रहेगा. When average cost falls as a result of increase in the input, MC is less than average cost. उसके नीचे रहेगी. When average cost rises as a result of increase in the output, जब वो increase होगी, MC उसके ऊपर चली जाएगी. MC cost is more than average cost. When average cost is a minimum, MC नीचे से उसको intersect करेगी, equal रहेगी. MC is equal to average cost. In other words, marginal cost curve cuts the average cost curve at its minimum point, optimum point. ठीक है? Now, there is a poll and you have to answer it. For every question, for numerical question, I will give you 1.5 minutes. Everyone has to reply. So I will start the poll. एक question. This is my first question on your screen. अच्छा, वो थोड़ा 1 is 65, 2 का 90 है, 3 का 120 है and 4 का 160 है. You have 1 minute 30 seconds. 1 का 60 है, उन्होंने दिया है आउटपुट. 1 का 65 है टीसी, 2 का 90 है, 3 का 120 है एंड 4 का 160 है. आई थॉट वो स्पेसिंग बराबर बैठे होगी. ठीक है, टेबल नहीं लेता पोल में वो. आपको वहां पे क्लिक करना है, मुझे इधर आंसर पिंग नहीं करना है. पोल इज नॉट विजिबल. व्हाई? अच्छा, एक सेकंड. अच्छा, इट इज नॉट विजिबल ना. एक सेकंड. I will again relaunch it.
अब दिख रहा है क्या? कैन यू सी इट? नॉट विजिबल? नहीं। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट। एक सेकंड, लेट मी कंफर्म। कैन यू सी माई स्क्रीन? ओके। कैन यू सी और स्टिल नॉट? अब दिख रहा है क्या? बोलो यस, गुड गुड। अभी भी नहीं दिख रहा है? आई डोंट नो यार। अरे यार अभी तो attendees are now viewing the questions. नहीं दिख रहा है, लिख। आई डोंट नो यार, एक सेकंड, एक सेकंड। रिजल्ट दिख रहा है क्या? रिजल्ट, रिजल्ट दिख रहा है क्या? रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है? ओके एक सेकंड, एक मिनट देना खाली, मैं बराबर सॉर्ट करता हूँ, मुझे वो चेक करने दो। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके। आई डोंट नो। इट्स विजिबल बट वो, एक सेकंड, एक मिनट देना, मैं सॉर्ट करता हूँ, वो मुझे क्लिक हुआ, क्या हुआ होगा। अच्छा टिल नाउ किसी के डाउट से आई विल टेक दोस डाउट्स, यू कैन आस्क मी। वी हैव 1 minute बिफोर वी स्टार्ट द पोल। यस। पूछ सकते हो यार, तुम लोग पूछते नहीं कुछ, एक भी डाउट नहीं रहता तुम लोगों को। एक सेकंड। अच्छा किसी के डाउट है मैं तब तक ले लूंगा। सर, सो एज ए मैन्युफैक्चरिंग, so as a manufacturer my motive will be optimum output, and the trader, no no no, you let it be manufacturer trader, your objective is maximum profit, your objective is always and always maximum profit। कोई भी हो, मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑब्जेक्टिव। ओके मिल गया मुझे, एक सेकंड।
लेट्स सी सेकंड आ रहा है क्या? एक सेकंड. चेक करो अब दिख रहा है क्या क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन. इफ यस देन पिंग मी. अभी भी नहीं दिख रहा है? ओके ठीक है, नो इश्यूज. हम वो कभी कंडक्ट करेंगे, मुझे उस पर चेक करना होगा. ठीक है, आई डोंट नो. अकाउंट्स में तो परफेक्टली हो रहा है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल डू इट अगेन. आई डोंट नो, कुछ तो रहेगा, मुझे देखना पड़ेगा उसको ठीक से. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, आई नीड टू फिगर इट आउट. अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके सिवा किसी के क्वेश्चन से बिफोर वी बाउंड अप? देयर विल बी वन टेस्ट. कल मैं एक टेस्ट रखूंगा गूगल इस पे, गूगल अपने इस पे गूगल फॉर्म पे. आई विल हैव गिवन यू ग्राफ्स. You have to find out cost, you have to find out profit, you have to find out, right, output वगैरह. मिनिमम 10 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं रहेंगे. एक डायग्राम रहेगी एंड उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा. हर डायग्राम के नीचे क्वेश्चन रहेगा एंड यू विल गेट इंस्टेंटली रिजल्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं. एक जस्ट उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी, उसके लिए खाली ऑब्जर्वेशन करना है कि हाँ ये मेरी डायग्राम है, मुझे ये ढूंढना है. ठीक है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. कल मैं आपके मैथ्स टेस्ट है कल आपकी, और उसके साथ मैं इको का भी आपके साथ लिंक शेयर करूंगा. वो हो जाएगा कल इवनिंग में. ऑब्वियसली देयर विल बी अकाउंट्स लेक्चर. ठीक है, अकाउंट्स लेक्चर रहेगा. ठीक है, इवनिंग में अकाउंट्स लेक्चर रहेगा. थोड़ा मैं जल्दी रखूंगा, लाइक 5 o'clock इन द इवनिंग. 5 to 7:38 अपना लेक्चर रहेगा. अकाउंट्स बीआरएस हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आज का टाइमिंग लॉ और फिर इवनिंग में अकाउंट्स. थैंक यू. मॉड्यूल ठीक से पढ़ो, मैं हर एक को बोल रहा हूं. माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, मॉड्यूल इतने अच्छे से करो ना, बेस्ट होना चाहिए. एंड यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द मॉड्यूल. इको 70 मार्क्स का, कल भी मैंने बोला इको 70 मार्क्स का होगा. भले ही एग्जाम में 60 मार्क्स लिखा है, 70 मार्क्स के नीचे एक मार्क नहीं रहेगा. बीसी के 40 मार्क्स बहुत हो गया. ठीक है, उतना लेंदी है भी नहीं वो. सो और थोड़े डायग्राम्स पे वर्क करो, न्यूमेरिकल्स पे वर्क करो. एंड दिस पोल वी विल कंडक्ट ऑन सम अदर डे. मुझे उस पे देखना पड़ेगा. थैंक यू. आई विल एंड टुडेज लेक्चर. थैंक यू.